रोजे की हालत में नहीं आ पाते रही है। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੈਤ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ। रोजा सी, बिल्कुल रोजा सी। मां धी कदों करो दे हलफन कहने कुरान लियाओ सी हाथ रख के कहने कि उन्हें जुल्म गरीब नहीं ते कीता, जुल्म कीता मां धी ते दोवां ते जुल्म कीता। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ। अच्छा ਮੁੜ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, अच्छा ਇੱਕ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, रोटी उत्ते सड़ती पई है। उन फायर 4-5 मार के। अस्सलामुअलैकुम, एसपीएन न्यूज के साथ मैं हूं मियां अरसलान। नाज़रीन, आज मैं जिला उकाड़ा का नवाही गांव जो कि शेरगढ़ के नज़दीक है वहां पर मौजूद हूं, जहां पर एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हर आंख अश्क बार होगी कि क्या इतनी भी फरहौनियत की इंतहा हो चुकी है कि रोज़े की हालत में शोहर अपनी बीवी और अपनी सास को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है और बच्चे उस तड़पती माँ को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो उसको नहीं छोड़ता। इस कत्ल के पीछे असल वाक़यात हैं क्या, असल मामलात हैं क्या, पस मंज़र में छुपी हुई हकीकत क्या है, वो यहाँ पर जो मकतूला के घर वाले हैं और अहले मोहल्ला हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी की नाम ताड़ा? मेरा नाम शेर मोहम्मद जी। शेर मोहम्मद। बाबा जी कितनी उम्र आपकी? मेरी 80 साल उम्र बेटा। अच्छा, मकतूला के साथ क्या ताल्लुक है आपका? कोई मेरी जो पोतरी है। ठीक है बाबा जी, क्या मामला हुआ है? क्या उसके कोई नाजायज ताल्लुकात थे, कोई मामला था, क्या वजह? नहीं, अल्लाह को जाना, मैं खरे वाले उठना भी नहीं। ठीक है। कोई ये जायदाद दा सी, ये गाई दा सी, वो मंगदा सी। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਗ ਪਿੰਡ ਬਣਾਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਬਣਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਤੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਲ 4 ਆਨੇ ਖੋਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਹਰਾਮਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा बाबा जी, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਰਸਾਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰਾਂ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲ ਆਟਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਚਰੀ ਟਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸਟਾਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕਾਕੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਟਾ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਚਰੀ ਬਣਾਵਣੀ ਕੋਲੀ बस वहाँ से। ठीक है, और गोलियां मारकर उसको कत्ल कर दिया। हाँ जी, कत्ल करता। दोनों मामा दिया रोजे ना। हाँ जी, मुझे ये बताइएगा कि जो कत्ल हुई है खातून, उसका रोजा था? रोजा सी, बिल्कुल रोजा सी। मां धी कदों करो दे सन। अच्छा, रोजे की हालत च ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਫਰੌਨ ਨੂੰ? ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰ। ਅੱਛਾ, ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਤੀ ਪਰੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੇ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਪਵਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਲੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰਖੀਜੇ, ਲੰਬਰਦਾਰ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਗਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੁੜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਾੜ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਇੱਧਰ ਅੰਮੀ ਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਕੇ ਘਰ। ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹੂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ठीक है, ठीक है। हाँ। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा कि जब ये कत्ल हो रही थी रोजे की हालत में और उसको कत्ल करने के बाद उसकी सास को भी रोजे की हालत में मारा गया? हाँ जी, हाँ जी, रोजा सी, सास का भी रोजा सी, उसकी बेटी का भी रोजा सी। मैनू सुबह 3 वजे टकरी है तो मैं उन्होंने पूछा, मैं किधर जा रही हूँ? मैं दादी बहन के घर जा रही हूँ। उसले कहती मैं खा जा, बह जा, कोई खाना पीना। इन्हें मेरा तो रोजा है। उनका भी रोजा सी, उनकी बेटी का भी रोजा सी। जो उनका रोजा ना होंदा तो खजूरा जुल्म होया, की कहना चाहोगे जुल्म दे बारे? ये आने कि सानू इनका इंसाफ मिलना चाहिए। इनका सानू भावें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पियाना, असी इनका इंसाफ लेना है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਮਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਰਹੂਮਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕ ਸੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਤਲ
ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਝੂਠ ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਨੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਆਓ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਦੋਵੇਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਮਗਰੂ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਗਰੂ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕੱਲੀ ਪੱਠੇ ਪੇ ਵੱਢ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦ ਬੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਪੱਠੇ ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਾਤ ਰੋਜ਼ਾ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲਸਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਜਿਲੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। अच्छा अंकल जी मुझे ये बताइएगा कि क्या वक्त था कितने बजे जो कि उस खातून को कत्ल किया गया? वो जी शामी रोजे छड्डन तो पहले जी कितनी देर 10-15 मिनट पहले ठीक है उत्थे उन मारिया है उन उत्थे लुकाया है। अच्छा मुड़ो रोटियां पका रही है, अच्छा एक तवे दे उत्ते रोटी पई है। एडा जुल्म यार हो रहा है, रोटी उत्ते सड़दी पई है, उन फायर 4-5 मार के ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ दसो जी दसो हाँ जी ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। जी जी हाँ ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 30 ਬੋਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 30 ਬੋਰ ਲਿਆ ਹੈ ਹੱਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तफ्तीश कर रही है और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये कोई सानिया छोटा सानिया नहीं है, उन- जितने भी हैं वो वो सारे आपन- कानून के कटहरे में होंगे। बिल्कुल आप ठीक ਉਹ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ हट ते उन्हें उससे बंदे ने वापस जाते दिता है। ठीक है मुदैया मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भाई थोड़ा सा आगे आ जाएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आखिरी टाइम आपकी अपनी बहन के साथ कब बात हुई थी? उस दिन ही उस रोज ही सारा दिन मेरा मियाँ उनके कोले रहा। आदि अगली माल वाली थां पटदे रहने, उत्थे नवी थां पावनी आसू थां उन्हें मुल लई। आ कागजात मेरे सामने है ने जेड़े मेरी बहन ने मुल लए ने। जिन्होंने नाज़रीन ये वो कागज़ के टुकड़े हैं जिन्होंने 3 बच्चों को यतीम कर दिया। नाज़रीन ये वो कागज़ के टुकड़े हैं जिन्होंने हंसते बसते घर में सफ़े मातम बचा दिया। ये वो कागज़ के टुकड़े हैं जिन्होंने इतनी सफाकियत की इंतहा कर दी कि शोहर ने अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया। नाज़रीन ये वो कागज़ के टुकड़े हैं कि जहां पर शोहर और बीवी का एक मुकद्दस रिश्ता और उसने उस रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया। ना सिर्फ इन कागज़ के टुकड़ों के पीछे अपनी बीवी को कत्ल किया बल्कि अपनी सास को भी कत्ल कर दिया। और कत्ल करने में ना सिर्फ वही था बल्कि कातिल का साथ में बाप भी इस मामले में शामिल था। और नाज़रीन बात यह है कि जो बच्चे यतीम हुए हैं आखिर वो किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। वही माँ थी जो लोगों के घर में काम करती थी और काम करने के बाद अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे कुछ चीज़ें लेकर आती थी और इन बच्चों का पेट पाल रही थी। ना सिर्फ बच्चों का पेट पाल रही थी बल्कि पूरे घर को चला रही थी और अपने उस शोर जो कि शराबी कबाबी था उसको शराब और उसकी अद्वियात के जितने भी खर्चे थे वही अफोर्ड कर रही थी। लेकिन जुल्म की इंतहा की गई है। मुदैया से थोड़ी सी बात करता हूँ। अच्छा बताइएगा कि जब वो उसको फायर लगे हैं कितने फायर लगे और किस तरह वो तड़प रही थी? मेरी जिहड़ी बहन हैगी असी तो 2 वेखे। जब असी उनका पोस्टमार्टम करावन गए अगू डॉक्टर ने कहा इन्हू 4 फैर मेरे रमी नाल मेरी बाजी ने उन्हें 4 फैर मारे की हालत में उनकी रोज़ा सी रोज़ा अफतारी भी उन्होंने नहीं करन दिती और रोज़ा समेत ही और शहीद हो गई मामा थियां दोवें। मेरी बाजी ने बाहर मार के तो फिर आके मेरी चुल्हे ते सानू इंसाफ चाहिदा है, सानू इंसाफ चाहिदा है। असी इंसाफ लेना है। असी ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਨਾ ਭਾਈ। और साडा एक कल्ला भरा 6 महीना दा जी रोजे में जुल्म किया गया। रोजे की हालत रोजे की हालत च मेरी आ बांझे फिरी है। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣੇ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣੇ, जज साहब कोलों इंसाफ। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इस दुख और दर्द को बयान किस तरह कर सकूं। नाज़रीन पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई सानिया होता है लेकिन ये ज़िला उकाड़ा के लिए बहुत बड़ा सानिया है कि रमज़ानुल मुबारक में रहमतों और बरकतों वाला महीना और उस महीने में एक शोहर अपनी बीवी के ऊपर इतना जुल्म करता है। डीपीओ साहब से मेरी अपील है कि खुदारा आप इस बात का नोटिस लें और उस जो कि मुल्जिम को कैफरे करदार तक पहुंचाएं। और ये जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं आप इनकी हमदर्दी बने और हम
हमदर्दी के साथ इनको आप इतना मुतमिन करें कि ये कभी भी ये ना कहें कि पाकिस्तान में इंसाफ है या नहीं। नाज़रीन, आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अवानों में बैठे हुए हमारे लोगों तक पहुँच सके, हमारे हुक्मरानों तक पहुँच सके और वो इनको इंसाफ दे सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।